Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Basin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish ji, and I'm your host Meher Basin. Ours is a very comprehensive show based on the science of numerology and astrology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish ji. Hello Prem ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today, Premji's taken his time out to be with us because today is a very special email dedicated episode where you've written it to us and I'm going to read out the emails and Premji is going to give his best remedies, guidance and solutions as per your birth chart. So let's find out who sent in the first email for today. और प्रेमजी ये email आई है from Miss B.G. Date of birth is September 30th, 1979. Place of birth is Ambala and time of birth is about 12:32 in the afternoon. She wants advice and remedies for her health, which she says she is very concerned about, and her profession, and needs your help and remedies. देखिए मिस बीजी, अगर आप 30 सितंबर 1979 अम्बाला के दिन कल 12:32 PM का बर्थ है, जी इनका सेजिटेरियस राइजिंग है, मून साइन भी सेजिटेरियस है, धनु लगन है और धनु राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है जुपिटर, और इनको जुपिटर की ही दशा चल रही है 2020 जुलाई से लेके, जो कि 2036 जुलाई तक रहने वाली। जुपिटर 9th हाउस का लॉर्ड होता है, 9th में ही बैठा, बट शनि और राहु के साथ बैठा है। शनि के साथ बैठ जाए तो इतना नेगेटिव नहीं करता, लेकिन राहु के साथ बैठ जाए तो गुरु राहु चंडाल योग क्रिएट कर देता है। जुपिटर इनकी हेल्थ और इनके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है जी। गुरु जो है आपके स्टमक से, योर इन्फ्लामेशन पे, योर इमोशनल हेल्थ पे, योर ब्रीदिंग पे, आपकी एंग्जाइटी पे भी इम्पैक्ट करता है। और राहु की वजह बैठने से जुपिटर के वो आउटकम नहीं आती। आप अपने जॉब या अपने बिजनेस में है तो दूसरे लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है, आप खुद को मोनेटाइज नहीं कर पाते लाइफ में जैसे होना चाहिए, जबकि टेक्निकली ये इनकी लाइफ का गोल्डन पीरियड होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर इन योर ओन planet's mahadasha, right, and it's in your destiny house, it's supposed to be the best time of your life. Wow. But because of the influence of the Rahu in the 9th house is basically destroying it. So then Premji, what would you recommend for her to do, and any stones that you recommend? इनको एक येलो सफायर पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में। उसको थर्सडे के दिन सुबह 7 से 8 बजे के बीच में पहन लें, जिसको लाइफ लॉन्ग पहन के रखना चाहिए। राहु को शांत करने के लिए इनको एक 50 ग्राम का सिल्वर एलिफेंट लेना चाहिए, जिसकी ट्रंक जो है ऊपर को होनी चाहिए, right. और उसको किसी गंगा जल में ग्लास जार में डाल के उसमें उस एलिफेंट को जो है पानी के अंदर समर्ज कर देना चाहिए, और उसको आपको अपने टेंपल में रखे रहना चाहिए हमेशा। अच्छा, जब भी उसमें कुछ पानी खत्म हो जाए या ड्राई हो जाए तो यू कैन ऐड मोर इनटू दैट। और ट्वाइस ए ईयर थर्सडे के दिन इनको किसी होमलेस शेल्टर में खाना भी डोनेट करते रहना चाहिए। और थर्सडे के दिन आप वेजिटेरियन रहें, जिस भी गॉड को आप फॉलो करते हैं उसकी पूजा पाठ जरूर करते रहना चाहिए। Thank you, Premji. So like Premji is saying that, he foresees a planetary position is not aligned properly in your birth chart. That's why you're facing problems in your health and profession. However, Premji is recommending you need to wear a pukraj on Thursday. Try and stay vegetarian. There's a small mantra that you need to do. You also need to do, some kind of food donation on Thursdays and make sure that you give food to those people. You don't need to give a big exorbitant meal, even 2-3 dishes is good enough to you and it'll help you and calm down your planets. And the silver trunk of the elephant that Premji has mentioned has to be a solid silver elephant with the trunk up, totally submersed in Ganga Jal. Shut the lid tight and keep it in the temple. It's always a safe place, the temple. And you will see big improvement happening in your life. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the first 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Aries for this week. Premji, what are the predictions for Aries? एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आप अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स देखेंगे। आप मेंटेन रखेंगे बैलेंस अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए आपको थ्रू आउट दिस वीक के अंदर। आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी अपने काम के ऊपर भी, और आप अच्छा नाम भी कमाएंगे इस वीक के अंदर। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। थोड़ा अवॉइड करिएगा, इम्पल्सिव मत रहिएगा,
सोच समझ के ही बात करिएगा और सोच समझ के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। आपको थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी चाहिए अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ़ के अंदर, अदरवाइज़ आपको थोड़ी बॉदरेशन रहेगी। Gemini? जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। थोड़ा ट्राई करिएगा, फोकस बना के रखें ऑल द टाइम। कोई भी छोटी चीज़ आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए और आपको थोड़ा-सा लर्न करना चाहिए, थोड़ा पेशेंट बना के रखनी चाहिए काम के ऊपर। अदरवाइज़ आपका फोकस जो है इतना नहीं रहेगा और आप अपने टास्क भी अच्छे से नहीं कर पाएँगे। Cancer? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आप काफ़ी सेंसिटिव महसूस करेंगे और काफ़ी नर्वस रहेंगे अपने डिसीजंस को लेके भी। आप अपने जो टास्क हैं टाइम के ऊपर फिनिश कर पाएंगे, पर थोड़ी सी अटेंशन दीजिएगा अपनी चीज़ों के ऊपर, नहीं तो थोड़े एरर भी हो सकते हैं। एंड इस वीक के अंदर आपके खर्चे जो हैं थोड़े बढ़ भी जाएंगे। Thank you, Prem ji. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take a very small break. But before we go on to the break, if you resonate with the emails that we've read out today and Prem ji's given his remedies, quickly write into us at prem@premjyotish.net. See you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And today is a very special email dedicated episode where I am reading out the emails you've written into us and Premji is giving his best remedies, guidance, and solutions. So let's find out who sent in the next email. और प्रेम जी अगली ईमेल जो आई है दिस इज फ्रॉम मिस्टर जे के डेट ऑफ बर्थ इज Feb 8, 1978. Place of birth is Ludhiana, Punjab. Time of birth is 11:52 at night. He has questions about business and his main concern is what type of business should he do and in which business will he find success? देखिए मिस्टर जेके, अगर आप फरवरी 8, 1978 लुधियाना पंजाब, इनका 11:52 PM का बर्थ है। जी इनका लिब्रा राइजिंग है, मून साइन इक्वेरियस है, तुला लगन है और कुंभ राशि है इनकी। तुला लगन का लॉर्ड शुक्र है, राशि का लॉर्ड है इनके शनि। इनको 7.5 चल रही है, जो इनका थर्ड फेज स्टार्ट हुआ इस साल मार्च के अंदर से। एंड ही इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ बुध दशा विच स्टार्टेड लास्ट ईयर, जून से स्टार्ट हुई है। तुला लगन का लॉर्ड है वीनस। वीनस इज रिलेटेड टू फाइनेंस, साइंस, टेक्निकल चीज़ों से जुड़ा हुआ है। जी अगर आप बिजनेस में जाते हैं तो फिर आप रियल स्टेट में, कंस्ट्रक्शन में, प्रॉपर्टी फ्लिपिंग में, हॉस्पिटैलिटी में, किसी फूड बिजनेस में भी जा सकते हैं, फ्रेंचाइजीज के अंदर। और वीनस इज आल्सो रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट टू समटाइम यू आर इनटू इवेंट प्लानिंग में आप होते हैं, या किसी तरह के भी आप बेसिकली फैशन से जुड़ा काम भी see. ये भी कर सकते हैं। तो टाइमिंग जो है इनकी बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छी है, बिकॉज ही स्टार्टेड है बुध दशा। मरकरी जो है बेसिकली सन के साथ 4th हाउस में बैठा हुआ, तो इट मीन्स आप पैदा कहीं और होंगे और बिजनेस जाके किसी दूसरे देश में शुरू करेंगे। अच्छा एंड स्पेशली अब इनकी इस राशि पे 7.5 भी खत्म हो चुकी है। ही इज गोइंग थ्रू 7.5, बट द कुंभ राशि पे निकल चुकी है, तो टाइमिंग इनके लिए बहुत अच्छी है टू स्टार्ट बिजनेस एक्चुअली। So then Premji, what will be his remedies and when can he really start that business? देखिए टाइम जो है इनका जिस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इस साल सितंबर के बाद से 15 के बाद से इनको स्टार्ट कर देना चाहिए। इनको एक डायमंड पहन के रखना चाहिए, 1 कैरेट का प्रिंसेस कट अपनी राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, उसको किसी वाइट मेटल में पहने, वाइट गोल्ड में या प्लैटिनम के अंदर। फ्राइडे के दिन उसको पहने तो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। कुंभ राशि है इनकी, तो इनको जो 7.5 चल रही है इस वक्त, तो इनको सैटरडे के दिन जो है मस्टर्ड ऑयल में रिफ्लेक्शन भी देखते रहना चाहिए। उसमें किसी स्टील बाउल में डाल लें मस्टर्ड ऑयल को, फिर अपना चेहरा देख के फिर उसमें एक लौंग डाल के उसको बाहर किसी पेड़ या पत्थर पे गिरा दे, तो जिससे शनि छाया जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तुला लगन है, मेष राशि बैठी है आपके 7th हाउस में, तो पार्टनरशिप जो है आपको खुद ही करनी चाहिए, किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं इनको करते रहना चाहिए। उस चीज़ का भी इनको ध्यान रखना है। और किसी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन में भी इनको डोनेशन देते रहना चाहिए once a year अपने बर्थडे के बाद। So Premji has given you a lot of remedies in the sense that, they are going to impact your life and your business. You can get into real estate, you can get into food business, you can get into fashion. However, you need to start all of this after September 15, 2025, when the planets will be positive for you. You need to wear a diamond, which is very, very crucial
for your development and your growth. Make sure it's a good quality, untreated, unheated stone. And we wishing you all the very best. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the next 4 zodiac signs. Let's find out the predictions for Leos for this week. Premji, what are the predictions for Leos? लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए इस वीक के अंदर आपकी काफ़ी प्रोग्रेस होगी। आप बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेंगे, पोटेंशियल एबल टू कंप्लीट किसी तरह का भी जो टास्क है उसको ख़त्म कर पाएंगे। काफ़ी डिटरमिन रहेंगे इस वीक के अंदर। ओवरऑल आपके लिए काम और आपकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव वीक है। Virgo. वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए आप लोगों के लिए पैसिव वीक है। आप बहुत सारे स्ट्रेस बना रहेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ चल रही हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएटेड हो सकता है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। जो पैसे का जो इन्फ्लो है थोड़ा वो भी लेसर रहेगा इस वीक के अंदर। Libra. लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए किसी तरह का भी जो बड़ा डिसीजन है अवॉइड करिएगा। पॉजिटिव रहिएगा थ्रू आउट दिस वीक के अंदर। कोई भी नेगेटिव थॉट है वो आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए, आपकी रूटीन नहीं इम्पैक्ट होनी चाहिए। अच्छी प्रोग्रेस करेंगे काम के ऊपर, बट एट द सेम टाइम आपके जो खर्चे हैं इस वीक के अंदर काफ़ी बढ़ जाएंगे। Scorpio. स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए जो भी आपके टास्क हैं आप उसको अच्छे से एक्सिक्यूट कर पाएंगे। काम की चीज़ें पहले से और भी बेटर हो जाएंगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ के अंदर और आप गेन करेंगे अच्छा नाम और काम जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं पास में। Thank you, Premji. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take a very small break. But when we come back from the break, we'll be taking more emails and talk about more horoscopes. So don't go too far. We'll see you right after this short break. Hello and welcome back to One on One with Prem Jyotishi. And Premji's been in the studio explaining to the viewers what exactly was needed as per their birth chart because today is a very special email dedicated episode. So time now to find out who sent in the next email. Premji, अगली email जो आई है, this is from Mr. Krishan. Date of birth is June 12th, 1998. Place of birth is Redwood City, California. Time of birth is about 7:01 in the evening. I guess this is a concerned parent who wants to know about the child's health and any remedies that you can give to them. देखिए मिस्टर कृष्ण, अगर आप 12 जून 1998 इनका रेडवुड सिटी कैलिफोर्निया 7:01 PM का बर्थ है। जी। इनका स्कॉर्पियो राइजिंग है और इनका जो मून साइन कैप्रिकॉर्न है, वृश्चिक लगन है और मकर राशि है इनकी, जिसका लॉर्ड होता है मंगल और राशि का लॉर्ड जो है वो शनि है। 2018 से राहु की दशा चल रही है जो कि 2036 तक रहने वाली है। राहु जो है इनकी जन्मपत्री में लियो में सिंह राशि में इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है और सिंह राशि में बैठ जाए तो सूरज पे इम्पैक्ट करता है। सूरज है तो आपकी जो मेंटल हेल्थ, आपका फोकस, आपके इमोशंस को, आपके मोटर स्किल्स को वो करता है। तो जब से राहु दशा चल रही है तो एक तरह से सोलर इक्लिप्स स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए जो है काफ़ी स्ट्रगल चल रही है। और मेंटल हेल्थ तो सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है बिकॉज इफ़ यू आर emotionally not well, then you can think any sort of a negative things in the life. तो राहु की वजह से टाइमिंग जो है इतनी ज़बरदस्त नहीं है। अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है इनका थोड़ा सा रफ है till 2033 actually. So Premji, any remedies that the child can do or the parents can do for him? देखिए एक तो इनको जो है एक रूबी पहन के रखना चाहिए 5 to 6 कैरेट का। आप एक किसी पेंडेंट में उसको बनाएं, उसको संडे के दिन इनको गले में उसको पहना दिया जाए अराउंड हिज नेक। मंगल लॉर्ड है तो लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ट्यूसडे एंड सैटरडे के दिन उनके पैरों में सिंदूर में जैस्मिन ऑयल मिक्स करके चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा करें, चाहे इनके पेरेंट्स करें या ये खुद भी कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग जी, इनको ब्लाइंड लोगों को हेल्प करते रहना चाहिए क्योंकि सोलर इक्लिप्स है राहु की वजह से, तो उससे जो है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। किसी भी ब्लाइंड ऑर्गेनाइजेशन में डोनेशन दें। राहु को शांत करने के लिए जो है घर में गंगा जल रख लें बिफोर ही शावर्स इट। थोड़ा सा गंगा जल अपने सर पे डालें, राइट। तो जिससे जो है कहते हैं राहु, गंगा स्नान से राहु जो है वो शांत रहता है और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करता। And they will see the improvement. After that, once they start doing these remedies, definitely there is going to be improvement in the health in a very, very positive. Thank you, Premji. So like Premji is advising you that yes, times are difficult, especially when a child is involved, but he believes and he's giving you the confidence that as long as the remedies are done correctly, you are going to see an improvement.
he needs to make sure that he goes to the blind school, like some kind of a donation. It can be food, it can be, something like, the Braille books that they read, or it would also impact a lot if you can donate for somebody's blind surgery. He also needs to do Hanuman Chalisa on Tuesday. If he doesn't know it, he can listen to it on YouTube. He also needs to be vegetarian on Tuesdays, and the other remedies that Premji has given you, and you shall see a good result coming his way. और दोस्तों, अब वक्त आ गया for us to understand from Premji the predictions for the last 4 zodiac signs. So let's find out the predictions for Sagittarius for this week. Premji, what are the predictions for Sagittarius? Sagittarius यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा एक्सपीरियंस करेंगे लैक ऑफ एफिशिएंसी कैरिंग आउट ऑल योर एक्टिविटीज दिस वीक के अंदर। आप थोड़ा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे काम के प्रेशर को लेके, और यू शुड अवॉइड टेकिंग एनी मेजर डिसीजन दिस वीक के अंदर। थोड़ा स्ट्रेसफुल वीक है, लेकिन काम बना के रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा थ्रू आउट। Capricorn? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी इस वीक के अंदर। आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, काफ़ी एक्टिव एंड प्रोडक्टिव जो है वीक रहेगा थ्रू आउट के अंदर, और आप अपने आप को प्रूव करेंगे, अपनी कैपेसिटी को और अपने टैलेंट को भी शो करें। Aquarius? इक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी डिज़ायरेबल वीक है आप लोगों के लिए। आप इजीली अपने सारे टास्क को अचीव कर पाएंगे। ये वीक पूरा आपके फेवर में जाएगा। कुछ लोग एक्स्ट्रा गेन करेंगे इंसेंटिव्स एंड पर्क्स इस वीक के अंदर। And Pisces? पाइसीज यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए आपको हैंडलिंग एक्टिविटीज़ को केयर के साथ। किसी तरह का भी जो मेजर जो डिसीजन है अवॉइड करिएगा। ट्राई करेगा अपने आप को इन्वॉल्व करिएगा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में, ताकि अपना माइंड आप अपनी जो ईवल चीज़ों को दूर करके रखें, और थोड़ा कॉशियस भी रहिएगा। Thank you, Premji. You came to the show and gave such honest opinion and remedies about the viewers who wrote into us with their problems, their remedies that Premji gave you. You need to do them for at least 43 days for the impact to start to begin. And you, of course, have to be vegetarian on the day that you're wearing the stone, or any remedy. It could be the mustard oil remedy, it could be any kind of donation, making sure that you're pure because, you're praying to the gods. However, if you have any further questions, you can always email us at prem@premjyotish.net. This is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. See you next week.